Hey guys, welcome back to the explained section to examination series where we are covering the explained section of the Indian Express, which is the most important section for your UPSC prelims 2026. My name is Vibhu Gaur and I teach current affairs for UPSC. In the past 1 year, I have built a community of more than 80,000 aspirants on my Instagram channel and we are about to hit 10,000 subscribers on our YouTube channel. Now, why do I say that this series is one of the most important series, and this section, the explained section, is extremely important for your prelims because it will give you 10 to 15 marks in your prelims and that's a guarantee. मैंने कई बार आप लोगों को ये बात प्रूव करके दिखाई है दैट यूपीएससी डायरेक्टली पिक्स अप टॉपिक्स फ्रॉम द एक्सप्लेन्ड सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो. यू विल सी हाउ यूपीएससी इज आस्किंग डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सप्लेन्ड सेक्शन. ठीक है. Now, in this video, we are going to cover the explained section from 14th of July till 27th of July. Although this is a weekly series, but I'm really sorry that we are running a little late. So the next two videos are also going to be a combination of 2 weeks, and then from September onwards, we will try to keep it on a weekly basis. ठीक है जी? अच्छा, but here is a promise that I guarantee you the entire explained section will be covered absolutely free of cost on my YouTube channel. थोड़ा सा videos में delay हो सकता है, but I promise you that you will definitely get the videos. ठीक है? Okay, now before we begin, few important things. Number one, that the notes that you will see in this video are available on my Telegram channel. The link of the Telegram channel is in my description of this video. ठीक है जी? अच्छा, उसी के साथ में I will be throwing some really interesting questions in this video. What I want you to do is just make a list of all the questions. So just keep noting down question number 1, question number 2, question number 3, and how many questions are you getting correct. In the end, you have to tell me in the comment section that out of all the questions that are going to be discussed in this video, how many did you get correct and how many did you get incorrect. Also, you can tell me how many did you skip. ठीक है? Because sometimes skipping a question is also a very intelligent decision which plays a very crucial role in your selection. ठीक है? चलो, अब इस नोट पर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. आपको बड़ा मजा आएगा. लेक्चर की शुरुआत एज यूजुअल एक प्यारे से सवाल के साथ. देखिए, द मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स कैन प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स दैट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है जी. Space telescopes such as the Hubble Space Telescope can directly detect gravitational waves. Okay, LIGO, Virgo, and Kagra are observatories designed to detect electromagnetic radiation. ठीक है जी, बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. आप आराम से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन के बारे में जरा सोचो. आई होप आपने सोचा होगा, एक आंसर भी आपके मन में आ चुका होगा. ठीक है, अब जरा बात करते हैं. न्यूज आई थी मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स को लेके, पर इस पे हम बाद में आएंगे. पहले हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स. एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं. कभी आप गैस के पास गए हो जहां पे गैस जल रही हो तो आपको एक हीट फील होगी. ऑल्दो आप उस हीट को देख नहीं सकते, आप उसे फील कर सकते हो. तो वहां पर गैस जल रही है और आप अपना हाथ पास लेके जाते हो तो आपको एक हीट फील होती है, महसूस होती है. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट पासेस एंड रीचेस योर हैंड. ठीक है. अब व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स? आपने कभी देखा हो, अगर स्टिल वाटर है, पानी रुका हुआ है, एंड यू थ्रो अ स्टोन, आप पत्थर फेंक के मारोगे तो रिपल्स क्रिएट होते हैं पानी में. दोज आर ग्रेविटेशनल वेव्स. अब in the context of space, electromagnetic waves are oscillating electric and magnetic fields that travel through space at the speed of light. तो आप इस तरह से सोचो. चलो पहले आप ग्रेविटेशनल वेव्स भी पढ़ लो. रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय एक्सेलरेटिंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दे ऑल्सो ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. अब सुनिए, दे आर, बड़े ध्यान से पढ़िए, बट आर डिस्टॉर्शंस in space itself, not in electric or magnetic fields. So basically, कभी आपने, अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट हो, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में इंटरेस्ट हो, तो आपने देखा होगा कि एक इमेज दिखती है जहां पर एक ऐसा स्पेस टाइम दिखता है, ऐसे फैब्रिक होता है ब्लैक कलर का, और सन और अर्थ, प्लैनेट्स और स्टार्स उस पर ऐसे प्लेस्ड होते हैं, और जहां पर वो लोकेटेड होते हैं वहां एक बेंडिंग हो रही होती है, जिसको आप बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम भी बोलते हैं. तो अगर उस पेपर पर, उस फैब्रिक में अगर कुछ इफेक्ट आ रहा है, रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, सो दोज आर व्हाट? ग्रेविटेशनल वेव्स. इस अगर मेरा हैंड
एक वो फैब्रिक है स्पेस टाइम का, तो अगर इस हैंड में वाइब्रेशंस हो रही हैं तो वो है ग्रेविटेशनल वेव। लेकिन इस हैंड के ऊपर भी तो एरिया है ना, स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। अब सिंपल बात यह है कि हमको यह बात तो मालूम थी थ्रू एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट ग्रेविटेशनल वेव्स दे डू एग्जिस्ट, ये बात हमको मालूम थी, बट वी वर अनेबल टू डिटेक्ट इट बिकॉज वी वर हैविंग लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हमारे एग्जिस्टिंग डिवाइसेस थे जैसे कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप्स, दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, दे वर ओनली एबल टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट फिर क्या हुआ, अब उसके बाद आता है LV के कोलैबोरेशन, LIGO वर्गो काग्रा कोलैबोरेशन। This LIGO, Virgo and Kagra collaboration are what? They are interferometer. Basically, they are devices that help in detecting gravitational waves. इतना भी समझ लिए, प्रीलिम्स में आपका काम हो जाएगा क्योंकि आपका सिलेबस एस्ट्रोफिजिक्स का नहीं है, जनरल स्टडीज का है। याद रखने वाली बात क्या है, लीगो वर्गो काग्रा या LV के कोलैबोरेशन कहीं एग्जाम में दिख जाए, दे आर रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल वेव्स। अच्छा, उसके अलावा ये भी देख लेना कि कौन सा कहां पर है। सो लीगो इज लोकेटेड इन USA, वर्गो इन इटली एंड काग्रा इज लोकेटेड इन जापान। ठीक है, इस बात को हमने पढ़ लिया। अब जब ब्लैक होल्स का मर्जर होता है, ठीक है, बड़ी सिंपल बात है, ब्लैक होल्स मर्ज कर सकते हैं आपस में, तो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज होती हैं, सिंपल बात है। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। द मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स कैन प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। Space telescopes such as the Hubble Space Telescope can directly detect gravitational waves? No, they are not capable of doing that. And LIGO, Virgo, Kagra are observatories designed to detect electromagnetic radiation. अरे नहीं, opposite कर दिया। Space telescopes they can detect electromagnetic radiation, but LIGO, Virgo, Kagra are for gravitational waves. तो आंसर क्या हुआ? A1 only। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आराम से जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Tidal currents caused by the moon's gravitational pull dissipate energy as heat in the oceans, which slows down Earth's rotation and causes the moon to move further away. ठीक है, स्टेटमेंट टू क्या है? द अर्थ मून सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड अ सिंगल सिस्टम विद कांस्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम सो एज द मून्स एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस एंड अर्थ्स एंगुलर मोमेंटम डिक्रीजेस। ओ भैया ये तो बहुत भारी भारी बातें हो गई, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, थोड़ी बातें ये भारी हैं, आई अग्री। अब या तो आप इसकी पूरी डिटेल में, फिजिक्स में, इसकी केमिस्ट्री में, इसकी बायोलॉजी में घुस जाओ, ठीक है, या फिर आप एक मोटी बात पकड़ लो। अगर मोटी बात पकड़ लोगे तो बाई चांस अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो काम हो जाएगा। अच्छा, मोटी बात भैया क्या है बता दो। मोटी बात यह है दोस्त कि आपका जो अर्थ है, सुनो मेरी बात, अर्थ रोटेट कर रहा है। रोटेट, रेवोल्यूशन नहीं बोला, रोटेशन बोला, रेवोल्यूशन नहीं, रोटेशन। अपने ही एक्सिस पे गोल 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 घूमता है, जिससे आपकी जो डे है 24 आवर्स में एक रोटेशन होता है। अगर मैं आपको बोलूं रोटेशन को थोड़ा धीरे कर दो, रोटेशन को धीरे कर दो, तो 24 घंटे ना लग के, शायद 24 घंटे ना लग के 25 घंटे लगे, तो लेंथ ऑफ द डे घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। अच्छा, अब एक बात याद रख लो कि अगर अर्थ का जो रोटेशन है, मून भी कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। कैसे है छोड़ दो, मोटी बात यह है कि अर्थ का अगर रोटेशन स्लो डाउन होगा तो लेंथ ऑफ द डे LD क्या होगा? लेंथ ऑफ द डे बढ़ेगा, और जो मून है ना आपका, मून विल गो फर्दर अवे टू बैलेंस द एंगुलर मोमेंटम। बस याद कर लो कि जो मून है इट विल गो अवे। एंड इसका ऑपोजिट, अगर अर्थ का रोटेशन तेज हो गया, बहुत जल्दी अर्थ रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा? अर्थ अगर बहुत जल्दी रोटेट कर रहा है तो जो लेंथ ऑफ द डे है वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द डे कम हो जाएगा और मून इनवर्ट जाएगा, फर्दर अवे नहीं जाएगा, टू मेंटेन दैट कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बात याद रख लो, इतनी बात याद रहेगी तो बात समझ जाओगे। अब बात ऐसी है कि मून और अर्थ जो ये है, अर्थ का जो रोटेशन है ओवर द ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स में स्लो डाउन हुआ है, फास्ट नहीं हुआ है, बहुत लंबे टाइम में स्लो डाउन हुआ है। इसीलिए ये प्रूवन फैक्ट है दैट द मून इज गोइंग फर्दर अवे एट अ वेरी स्मॉल रेट, 4 सेंटीमीटर पर ईयर।
ठीक है, ये बात भी मैंने यहाँ पे लिखी होगी, 4 सेंटीमीटर पर ईयर, अगर मैंने यहाँ पर कहीं लिखा है तो ये लिखा 4 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। एज द अर्थ स्पिन स्लोअर मून मूव्स अवे, स्लोअर रोटेशन लेंथन्स द अर्थ डे, जो हमने यहां देखा, ठीक है, ये हुआ है। बट साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है रिसेंटली कि बिकॉज ऑफ सम रैंडम वियर्ड रीजंस on a very short term basis the earth might be rotating even faster, spinning faster. So ऐसा नहीं है that it cannot spin faster, it can, but that is a temporary phenomena. लॉन्गर रन में क्या हुआ है, अर्थ की रोटेशन स्लो डाउन हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, टाइडल करंट्स कॉज्ड बाय मून्स ग्रेविटेशनल पुल डिसिसिपेट एनर्जी एज हीट इन द ओशन विच स्लोज डाउन द अर्थ्स रोटेशन। ये बात आप जान लो कि भाई जो टाइडल करंट्स होते हैं, जो आपके बेटा टाइडल करंट्स होते हैं, ठीक है, वो विच आर कॉज्ड बाय मून्स ग्रेविटेशनल पुल, उनसे कुछ एनर्जी डिसिसिपेट करती है जिससे अर्थ का जो रोटेशन है वो स्लो डाउन करता है। ये फैक्ट है, इसको मान लो, ठीक है। अच्छा, अर्थ का अगर रोटेशन स्लो डाउन करेगा तो क्या मून फर्दर अवे जाएगा? ट्रू। अच्छा, और ये होता क्यों है? बिकॉज अर्थ एंड मून कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल सिस्टम विद अ कांस्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट मोमेंटम रहता है, क्योंकि एक कांस्टेंट मोमेंटम रहता है, इसीलिए उस कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए अगर अर्थ स्लो डाउन करेगा तो मून दूर जाएगा, अगर अर्थ तेज भागेगा तो मून इनवर्ड आएगा। So statement 1 and statement 2 both are correct and statement 2 explains statement 1, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट था, आई नो, ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, जाननी भी नहीं जरूरी, इतनी अगर मोटी बात समझ आई होगी काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आज की वीडियो का, देखो जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरेन एनक्लेव्स। अच्छा, क्या होता है ये? देयर आर ओनली 3 सॉवरेन एनक्लेव्स इन द वर्ल्ड, मीनिंग sovereign states completely surrounded by another single country. अच्छा, Eswatini is a sovereign state in Africa, completely landlocked and bordered by South Africa on all sides. अच्छा, और San Marino is a sovereign state in Europe, completely landlocked and bordered by Italy on all sides. देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने अभी तक सॉल्व किया है तो आप तभी सॉल्व कर सकते हो दोस्त जब आपको एग्जैक्टली पता है कि पहली बात तो सॉवरेन एनक्लेव्स क्या होते हैं, दूसरी बात आपको क्लियरली पता है कि एस्वातिनी कहां है, सैन मरीनो कहां है, अदरवाइज तुक्कागिरी यहां पर नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो सॉवरेन एनक्लेव्स क्या होते हैं, बिल्कुल सही बात बोली, ये अगर कंट्री ए है तो सॉवरेन एनक्लेव का मतलब है ये कंट्री बी है, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, तो कंट्री बी इज विद इन कंट्री ए, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सॉवरेन एनक्लेव। दुनिया में ऐसी 3 कंट्रीज हैं, याद कर लो। सबसे पहले है लिसोथो, लिसोथो विच इज कंप्लीटली अंडर साउथ अफ्रीका, ठीक है, बॉर्डर्ड बाय साउथ अफ्रीका ऑन ऑल 4 साइड्स। नेक्स्ट इज योर सैन मरीनो एंड वेटिकन सिटी, बोथ सैन मरीनो एंड वेटिकन सिटी आर विद इन इटली, याद हो गया, वेटिकन सिटी, सैन मरीनो, वेटिकन सिटी तो आप नहीं भूलोगे, एंड लेसोथो। एस्वातिनी जिस पर बात हो रही है, एस्वातिनी इज नॉट अ सॉवरेन एनक्लेव, एस्वातिनी इज बॉर्डर्ड बाय साउथ अफ्रीका बट इज ऑल्सो बॉर्डर्ड बाय मोजाम्बिक। सॉवरेन एनक्लेव यानी कि चारों तरफ से एक ही कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सो व्हाट आर सॉवरेन एनक्लेव्स, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, देयर आर ओनली 3 सॉवरेन एनक्लेव्स इन द वर्ल्ड, मीनिंग सॉवरेन स्टेट्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय अनदर सिंगल कंट्री। एस्वातिनी इज अ सॉवरेन स्टेट इन अफ्रीका, completely landlocked and bordered by South Africa? No. And San Marino is a sovereign state in Europe, completely landlocked and bordered by Italy on all sides? Absolutely true. So इसका आंसर क्या हो गया? Statement 1 and 3 only. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स मेंशन्ड है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स मेंशन्ड है और रीजन या कॉन्टिनेंट आपको बताना है। कॉन्फ्लिक्ट जोन जरा ध्यान से पॉज करके देखो, अब ये न्यूज में आते रहते हैं, आपको याद ही होना चाहिए। देखो, सबसे पहले दरफूर तो आप नहीं भूलोगे, अफ्रीका, साउथ सुदान, इथियोपिया के पास, आपने देखा होगा कई बार ये रीजन न्यूज में रहा है, ठीक है, ये देखो यहां पर आप, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा सुमी रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सो इट इज इन यूरोप। एंड सुवेदा रीजन इज इन एशिया, इट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ सीरिया। सीरिया का जो सुवेदा रीजन है वो यहां पर है, नीचे की साइड पर, ठीक है, नियर इजराइल, एंड यहां पर द्रूज नाम की कम्युनिटी रहती है। खैर, आपको अगर रीजन का नाम भी याद है तो काम बन जाएगा, नोट कर लेना। आंसर क्या हो गया? 1 is C,
2 इज बी एंड 3 इज ए आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे जरा सल्फर डाइऑक्साइड पर ये प्यारा सा क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide released from thermal power plants is a part of flue gas. Okay, sulfur dioxide is considered as an inert gas as it stays stable under normal atmospheric condition and does not readily undergo chemical reaction. Sulfur dioxide contributes to the formation of PM 2.5 and acid rain. अगर आप एग्जाम प्रेशर में नहीं आते, ऊपर आपने देखा होगा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, उसके बाद बीच में एक नॉलेज बेस वाला क्वेश्चन आया। अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो ये आपकी नॉलेज से सॉल्व हो सकता था। देन सडनली आपके पास एक क्वेश्चन आता है जो, अगर आप उस फ्लो ऑफ उस ट्रॉमा ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हो तो आप क्या करोगे, झट से इसको भी कुछ डिफिकल्ट मान के कुछ इधर उधर सोचोगे। बट इफ यू मेंटेन योर पेशेंस, इफ यू आर काम, ऑल यू नीड टू ऑब्जर्व इज दिस स्टेटमेंट, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन इनर्ट गैस। रियली, जो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन करती है, जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, कैन इट बी एन इनर्ट गैस? अगर आप स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करते हो, आंसर इज 1 and 3 ओनली। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन यहां पे लिख के दे दी है, एक बार आप इसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, आपकी साइंस एनवायरमेंट की बुक में भी आपको ये मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने का एक छोटा सा फंडा भी बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। Consider the following statements regarding biostimulants in India. Now, statement 1. A biostimulant is a natural substance or microorganism that enhances plant growth, nutrient uptake, and resistance to stresses such as drought and diseases. Seaweed is one of the 8 types of biostimulants, and the manufacturing and sale of biostimulants in India are regulated under the Insecticides Act 1968. Okay, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करा जाए? देखो, ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जहां पर चांसेस ऑफ मेकिंग एन एरर आर सिग्निफिकेंटली हाई। व्हाई डू आई से दैट? नंबर 1, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट व्हाट इज अ बायोस्टिमुलेंट, कि जो अगर पहली स्टेटमेंट है क्या वो सही है? बट चलो आपने मान लिया कि ऐसी स्टेटमेंट सही होती है। नाउ सेकेंड थिंग, इज सीवीड अ टाइप ऑफ बायोस्टिमुलेंट? चलो आपको ये भी पता है। The next problem, are there really 8 types of biostimulants? And then another trap, is it regulated under the Insecticides Act? क्या एक्ट तो कोई भी हो सकता है? कितना इजी एक्ट को चेंज कर देना, कितना इजी है इस 8 का 9 कर देना या 9 का 10 कर देना। So there are so many variables in the question that until and unless you are not absolutely sure, don't attempt such kind of questions. इसमें तुक्का मत लगाओ। Although इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। Biostimulant is definitely what is written in the statement 1, a natural substance of or microorganism that enhances plant growth, nutrient uptake and resistance to stresses such as drought and diseases. Absolutely correct. Seaweed is also a type of biostimulant. Very true. And there are indeed 8 types of biostimulants. ये भी आपको याद रखना है, but they are not regulated under the Insecticides Act. Rather, they are regulated under the Fertilizer Control Order अंडर दी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, अब बायोस्टिमुलेंट के बारे में भी मैंने यहां पर लिख दिया है। सीवीड में से और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी देख लो, क्योंकि सीवीड के बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। ये डेटा मैंने पीआईबी से निकाला है। सीवीड क्या होती है? अगेन, इट इज अ न्यूट्रिएंट रिच प्लांट पैक्ड विद विटामिन्स, मिनरल्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दैट इज व्हाई इट इज अ बायोस्टिमुलेंट एंड इट हेल्प्स प्लांट्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, काम हो जाएगा। सीवीड पे क्वेश्चन आ सकता है, मेरा गट फीलिंग कहती है। अच्छा, अगर सीवीड पे क्वेश्चन आ सकता है तो स्नेक पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेक को लेके क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहां पर ऐड करी है। सबसे पहले तो भाई स्नेक बाइट इज अ नोटिफाइबल डिजीज, यानी कि इसको नोटिफाई करना मैंडेटरी है। अब इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ स्नेक बाइट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फैमिली वेलफेयर ही बोला ना मैंने, एनीवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमिंग फ्रॉम इंडिया बाय 2030। अब इसमें क्या है? बेसिकली आपको स्नेक बाइट प्रिवेंट करनी है। अच्छा, पहली बात, अगर आपको स्नेक बाइट होती है तो कौन सा स्नेक करेगा? देखो, बिग 4 ये हैं, बट क्या ओनली 4 species of snakes are venomous in India? No, there are a lot of other species. However, they are the big 4 जो सबसे पॉपुलर हैं for the bites: इंडियन कोबरा,
रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर एंड कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट के बारे में एक बात जान दो, ये नाइट टाइम में ऑपरेट करता है और इसका बाइट आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मतलब अगर इसने काटा तो आपको लगेगा किसी इंसेक्ट ने काटा है। तो यूपीएससी बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछता है तो कॉमन क्रेट के बारे में जरूर याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ स्नेक स्पीशीज हैं जैसे कि इंडियन पाइथन, ये चेकर्ड लिखा है यहां पर, आप ऐड कर सकते हो चेकर्ड कीलबैक, ठीक है। रैट स्नेक, वुल्फ स्नेक, सैंड बोआज, दे आर नॉट वेनमस, नॉन वेनमस, ठीक है। And there are these some very famous snake species like black mamba, inland taipan, rattlesnake, tiger snake. They are not naturally found in India. Black mamba आपको अफ्रीका में मिलेगा, inland taipan आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, rattlesnake यूएसए साइड में मिलेगा। तो इस तरह से होता है, इंडिया में नहीं होते। अच्छा, अगर स्नेक ने काटा तो हाँ जी, कौन से तरह का वेनम रिलीज होगा? न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, हेमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक एंड मायोटॉक्सिक। अब किसमें कौन सा होता है नहीं याद रखना, बट आपको नाम जरूर मालूम होने चाहिए। इसमें से जो मायोटॉक्सिक होता है ना, दैट इज फाउंड इन सी स्नेक्स। सी स्नेक्स आर एक्चुअली द मोस्ट वेनमस स्नेक्स, बट ये लोग बाइट कम करते हैं, ठीक है। बट सबसे ज्यादा डेंजरस, जिनका एंटी वेनम भी ज्यादा नहीं होता, दोज आर योर मायोटॉक्सिक वेनम इन द सी स्नेक्स, ठीक है। ओके, नाउ सांप ने काट लिया, वेनम रियली इंजेक्ट हो गया। अब उससे बचाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एंटी वेनम। एंटी वेनम इंडिया में पता है कहां से आता है? वेनम्स ऑफ स्नेक से ही आता है, लेकिन उसको कौन कलेक्ट करता है? इरूला ट्राइब्स। इस ट्राइब पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता सकता हूं। इरूला ट्राइब्स बेसिकली दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटी स्नेक वेनम इन द कंट्री। कहां मिलते हैं? ठीक है, 80% ऑफ द वेनम ये लोग सप्लाई करते हैं। दे आर फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। इनके बारे में रट लेना, याद कर लेना, ये आएगा पेपर में, ठीक है। चलो, स्नेक्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन इनफ रहेगी। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको आई थिंक एक प्रीवियस एक्सप्लेन सेक्शन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेवल शिप्स के बारे में बताया है। एक बार आप जरा वीडियो को पॉज करके ये लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ जी, सो इसको आपने आई होप सॉल्व किया होगा। INS निस्तार, ठीक है, ये बात जान लो, इट इज अ डाइविंग सपोर्ट वेसल। अब डाइविंग सपोर्ट वेसल से आपको मालूम पड़ गया होगा, अगर कभी कोई रेस्क्यू मिशन कंडक्ट कराना है तो INS निस्तार। INS तमल क्या एक डिस्ट्रॉयर है? नहीं, INS तमल एक फ्रिगेट है। INS अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। INS सूरत एक फ्रिगेट नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर है, और INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमको मालूम है। ओनली 3 पेयर्स, आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ी कॉमन इंफॉर्मेशन है, आप प्लीज इसको पढ़ लेना कि मलेरिया की फाइट के बारे में बात हो रखी है, लेकिन मलेरिया और डेंगू के बीच में क्या डिफरेंस होता है एक बार देख लेना। मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, आई डोंट थिंक इसको पढ़ाने की जरूरत है, आप लोग देख सकते हैं। अब 3 छोटे छोटे क्वेश्चन। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर? हॉट, ड्राई समर एंड माइल्ड। अरे भैया, रेनी विंटर। जहां आपको रेनी विंटर दिख जाए, ठीक है, उसके आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट रेनफॉल्स अकर इन द विंटर, एग्जैक्टली, बार बार ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, आंसर क्या हो गया? मेडिटेरेनियन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। द मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर गवर्न्ड बाय द शिकागो कन्वेंशन। यस, ये अब याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद एयर इंडिया के ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो गई है। ICAO is a UN agency. It is indeed a UN agency, a specialized UN agency. India is a member of International Civil Aviation Organization. Absolutely true. आंसर क्या हो गया? 1, 2 and 3 only. ठीक है। अच्छा, फिर the term patriot. Patriot recently seen in the news refers to which of the following? हाँ जी, बताइए बताइए बताइए, पॉज करके बताओ 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 भैया, याद करना है। A mobile surface to air missile defense system developed by the United States. थर्ड पे क्वेश्चन आया था, पेट्रियट पे भी आ सकता है। यही वो सिस्टम है जो सऊदी अरेबिया ने डिप्लॉय किया था जब उन पे ड्रोन अटैक हुआ था, पर ये सिस्टम तब फेल कर गया था, ठीक है। लॉल। एनीवेज, उसके अलावा कुछ मिसलिनियस आर्टिकल्स हैं, अगर हिस्ट्री को लेके कुछ आर्टिकल्स आते हैं मैं अटैच कर देता हूं, आप उनको देख लेना। इन डेटा सेट्स को भी आप यूज कर सकते हो, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स में, ऑल्सो इन योर मेंस, काफी काम आएंगे। बाकी अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं और आपको इन डेप्थ करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ने हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर enrolling into our current affairs panchayat program, which is only current affairs initiative, although we have answer writing initiative and a combination of both in terms of camp. But if you only want to study current affairs with me, where I guarantee you that in 6 lectures you will be able to cover entire month's current affair, then this is the initiative you should enroll in.
6 लेक्चर्स, 4 मेंस के, 2 प्रीलिम्स के, आपका पूरा मंथ का करंट अफेयर डन एंड डस्टेड। मेंस में प्रॉपर थीम्स, प्रॉपर एडिटोरियल्स की समरी इन अ माइंड मैप फॉर्मेट। प्रीलिम्स का जो आपने डेमो है वो इस लेक्चर के थ्रू देख ही लिया है। हमारा इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव है, क्रिएटिव है और क्रेडिबल है। I only do current affairs, and that is why I am extremely confident that we do it absolutely in the most professional and the most unique way. ठीक है? So if you want to share your burden of current affairs, then definitely consider joining into our program. Until then, keep studying and all the best. Take care. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।